Good morning, everyone. This is my second lecture on gender role or gender role in child's development. Well, in today's class, we are going to have some very good discussion. आज की क्लास में हम लोग जो है बहुत अच्छी डिस्कशन करेंगे एंड बिफोर गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन किसी तरह के डिस्कशन में जाने से पहले आई मस्ट क्लैरिफाई वन थिंग टू ऑल ऑफ यू राइट, जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं सबको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि दिस क्लास डज नॉट बिलोंग्स टू मी, राइट, दिस क्लास बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। इस क्लास के हर एक इंसान उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दूसरा कोई इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक यू नो व्हेन वन सेज दैट के हर टीम में एक गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। इस टीम में हर एक गुंडा है और ये पूरी टीम ही गुंडों की है जो कि आज कुछ सीखने आए, राइट। तो I might get bit humorous at times, but the purpose behind is that we're going to learn, not learn actually, but rather we are going to experience something interesting. How many of you just out of their bed जब अभी आपने उठे, जब आज आप उठे and you thought of yes, today we are having a class again, the same class, same day, same lengthy routine. How many of you have thought about we are going to have something interesting to experience today? कितने लोगों को ये लगा कि आज हम कुछ extremely interesting experience करेंगे? कितने लोगों को ऐसा लगा? You can unmute yourself and you can answer, or you can raise your hand also. Don't fake yourself. Don't fake yourself. अगर आपको लगा तो you can raise, or you cannot. Okay, Regina, you have raised your hand. Anyone else? It's not like कि आप करो हमें बुरा मान जाओ, मैं तुमसे गुस्सा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं भी सोचें तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट रजीना, बाकी लोगों को भी मैं यही रजीना को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आई मस्ट कि whenever you are going to get into any new situation, every class, जो क्लास आप करते हो, it is a kind of a new situation that you are in. तो जिस भी क्लास में आप जाएं या जिस भी सिचुएशन में आप जाएं, आप ये सोच के जाएं कि शायद आज मुझे कुछ नया सीखने मिले या नया जानने मिले या नया तजुर्बा करने मिले, और उस नई चीज को पूरी क्लास में ढूंढें, और अगर मिल जाए तो यू आर सेटिस्फाइड एंड यू शुड बी हैप्पी. You should be happy. Yes, today I have learned. For example, when you go to a restaurant and you order food, and you always, I don't know about you people, but I always order those foods which sounds bit different, है ना, कुछ जो अलग साउंड करता है, मैं उस तरह के खाने को ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ. या whenever I visit a new place, for example, last 6 months ago I visited where did I, कहाँ गया था मैं, I don't know, रानी नहीं, I guess Dalhousie. Yeah, I went to Dalhousie. So it was not a simple thing कि यार चलो Dalhousie चलें. I went there with an excitement कि यार आज कुछ नया मजा आएगा, something new or something novel I'm going to learn from this particular place, or कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. देखो, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग आर टू डिफरेंट टर्म. व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इट बिकम्स lethargic, it becomes monotonous, and when it same thing is transformed into experience, it becomes exciting. How many of you really believe or really agree to my point? कितने लोग आप लोग अग्री करते हो कि when it comes to learning it becomes lethargic, monotonous, but when it comes to experience
it becomes exciting. It really becomes exciting. How many of you believes that? You can, you can give your comment, or you can put your hands up. Nikita Rani. Okay, Nikita. So, okay, Sheeta. Mm. Yeah, Masumi. Okay. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much. So, yeah, somebody has unmuted. You can speak. Okay. Again, muted. So, the same way we're going to start today's class. Af the remainder part of the class, we'll try to make it, try to bring something new to it. Today we're going to start with a story. आज हम लोग एक कहानी से शुरू करेंगे. How many of you are interested in listening to a story? आज मेरे पास आपके लिए एक कहानी है छोटी सी. No, it will not do with raising your hand. I want to hear your sweet voices. I really want to hear your sweet voices. How many of you are excited to listen? Yes, okay. Okay, okay. Only girls, no boys. Boys does not like stories. Or boys are not here actually. I don't know. Anyway, before getting into the story, how many of you are still on your bed? Unwrapping your last, you know, dream and your sleep, your slumberous sleep. How many of you are still in bed? I mean, it's not a kind of an offense that you have done कि अभी भी आप सो रहे हो या अभी आप बेड से ही यू आर इनटू द क्लास. कितने लोग हैं? चलिए रेस कीजिए हैं या अनम्यूट करके बोलिए. यू कैन बी लाइक, आप बोल सकते हैं. ओके शीतल एंड सानिया, you're still on bed, then no problem. It's just no problem. Bed and morning are meant to sleep at least till 25 years. 25 साल तक तो आपको, there should not be any question. Anyway, so we have already heard about listening stories when we are going to bed. But today when we are about to leave the bed, I'm going to tell you a story. Story of a boy who is there in the womb of his mother. So there is a man called Raj and his wife, whose name was, of course, you can understand, Anjali, right? And they have conceived a baby. और उन्होंने एक बच्चे को conceive किया. Now they are not living in India. They are in, Canada, where जहाँ पर आप सेक्स बच्चे के बारे में अल्ट्रासाउंड से जान सकते हो कि आखिर है क्या, whether it's a male, female, and all the health parameter. Along with the health parameter, आप ये भी जान सकते हो कि वो is it a male or a female. So they both of them decided कि we're going to, or rather, Anjali decided कि I'll go for this particular thing, जानने के लिए I'll go for it. But Raj was quite, stubborn. वो नहीं चाहता था कि मैं जानूं, ठीक है, मैं जानूं कि मेरे आने वाली बेबी जो है वो लड़की है या लड़का है. Please keep this thing in your mind when I'm saying, ठीक है, क्योंकि there are some circumstances that we are going to hear in this story. तो जैसे ही दोनों में काफी can you hear me?
So this story is very interesting. Yeah, I'm. Can you hear me? या हेलो या सो दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, तू तड़ाक होने लगा, नहीं मैं नहीं जानना चाहती हूँ, नहीं तुमको जानना पड़ेगा, यहाँ ये हिंदुस्तान नहीं है जहाँ पर ये चीज़ अगेंस्ट लॉ है, दिस इज कनाडा, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। बोले नहीं मुझे सरप्राइजेस पसंद है। बोले सरप्राइज के तैसी जो चीज़ पॉसिबल है व्हाई डोंट वी नो बिफोर हैंड, 9 महीने बाद क्यों जाने, आज जान लेते हैं। If facilities are available, why don't we know this thing today itself? Of course, you know, after quarrel, ladai jhagde ke baad, generally it's the women who has the upper hand, and finally she convinces apne husband go, and both of them went for this ultrasound, and finally they came to know that it is a boy. Now, earlier they were not going for any kind of shopping for the baby, quoting कि हिंदुस्तान के कल्चर यानी हमारे मम्मी पापा क्या करते थे कि बच्चे के पैदा होने से पहले किसी तरह की शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, इट्स अगेंस्ट लाइक कुछ मिथ है इसके पीछे कि नहीं करना चाहिए, मनहूस होता है या फिर गलत होता है या व्हाटएवर इस टाइप की चीज़ है। लेकिन नाउ when they understood or when they knew about the gender of the baby, they went on to shop. वो लोग बड़े बड़े स्टोर्स गए, बच्चे के लिए कपड़े लिए, उसके लिए पालना लिया, जो भी चीज़ें होती हैं, यू नो, फर्स्ट बेबी को लेकर के देयर इज अ हेल लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खरीदी। Now, after the birth, like 9 महीने के बाद, finally all those things went off, and there was a normal delivery. Normal delivery होती है 9 महीने की, and when the child was brought home for the first day, for the first time, पहली बार जब बच्चे को लेकर के आया गया, तो उसको एक ऐसे कमरे में रखा गया जो जेंडर न्यूट्रल रूम था, और ये खास कोशिश की गई हस्बैंड एंड वाइफ के जरिए कि उसको कोई ऐसा कलर या कोई ऐसे कमरे में नहीं रखना है जो जेंडर बायस्ड हो किसी तरह का भी, चाहे वो रूम का कलर हो, जो रूम में रखी चीजें हों, इट शुड बी अ नॉर्मल रूम, जस्ट द वे इट इज, दैट जस्ट द वे इट शुड बी। रख दिया, खत्म हो गई बात, कहानी खत्म। बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा क्या मतलब कि 1.5 साल का हुआ, एंड नाउ it came to the first birthday of a child. Mummy started to decide. माँ उसकी डिसाइड करती है कि I'll give him a very beautiful, very nice gift. कुछ अच्छा गिफ्ट इसको देते हैं। Obviously, every parent will try to give gift the child for the first birthday, अच्छा कुछ देना। तो वो उसको एक कार का सेट गिफ्ट करती है, कार का सेट, और पापा उसके लिए एक गन लेके आते हैं, शूटिंग गन, बैटरी ऑपरेटेड गन, नॉट अ रियल गन। अब जो है यहां पर हम जो है इस पर्टिकुलर एपिसोड को रोकते हैं, और we'll hear the next episode when we'll go ahead into the class. ठीक है, हो सकता है आज, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, whenever it will be the next class of ours, ठीक है, उसमें हम लोग ये कहानी सुनेंगे, इस कहानी को आगे करेंगे। शीतल, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे याद दिलाइएगा कि कहानी कहाँ तक हुई थी, राइट? वैसे मुझे याद रहेगा,
मैं कंटेंट याद रखता हूँ, ठीक है, नाम कम याद रहता है। एनीवे, तो कहानी आप लोग को अब तक कैसी लगी? Hello. How do you find the story? You can write in the comment box. Are you hearing me? कैसे लगी आप लोगों को कहानी? अभी कहानी का तो आधा पार्ट हुआ, शुरुआती पार्ट हुआ है, अभी कहानी आगे बढ़ेगी। नाउ इस कहानी में से कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ। यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन माय स्टूडेंट्स कैन अनम्यूट देयर माइक एंड आंसर देम। फादर और मदर के बीच में लड़ाई क्यों हुई? Why does Raj and Anjali fought? Come on, answer fast. राज और अंजलि के बीच में क्यों लड़ा? मम्मी को जेंडर मालूम करना था, पापा को जेंडर मालूम करना था। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, why does mother only wants to know about the gender and not the father? This is just a question. और इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक पेज में मुझे लिख करके भेजिएगा। I'll create this question on the group, that is the Google Classroom, and I'll send it to you. Please write it in one page, ठीक है, टाइप कर दीजिए या कुछ भी और भेजिएगा। I will love to read your answers, right? दूसरा सवाल ये है कि जेंडर अनबायस्ड रूम में बच्चे को क्यों रखा गया माँ बाप के जरिए? बताइए। Come on fast, you don't have much time. ताकि वो जेंडर स्टीरियोटाइप से दूर रहे। वेरी गुड। और कोई? शीतल? क्यों उसको इस तरह के कमरे में रखा गया? सब सेम है, ओके, ताकि वो बड़ा होके समझ सके। अगला क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे के जेंडर के बारे में जानने के बाद ही शॉपिंग क्यों शुरू हुई, और क्या ये जेंडर बायस शॉपिंग थी या नहीं? अगला सवाल इसी से रिलेटेड, जेंडर बायस जानने से पहले प्रथा या जो हमारा कल्चरल मिथ्स है उसका नाम क्यों दिया गया कि हम लोग शॉपिंग नहीं करेंगे, लेकिन जेंडर के जानने के बाद जो शॉपिंग होने लगती है? पैसा वेस्ट ना हो। और कोई? क्या उम्मीद नहीं लगा रहा है? अच्छा, नहीं तो उसमें उन्होंने तो कहा था ना, कस्टम का ट्रेडिशन हमारे नहीं कहते हैं कि बच्चे के पैदा होने से पहले जो हमें शॉप करना चाहिए, लेकिन जब जेंडर पता चल गया तो शॉप करना शुरू कर देते हैं। यानी वही विकास जो कह रहा है वही बात है कि पैसा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, पैसा वेस्ट नहीं करना। पैसा को बचाने के चक्कर में उन्होंने जो है, एक तरह से कहा जा सकता है, पैसा को बचाने के चक्कर में उन्होंने समाज और संस्कृति का झूठा
ढोंग रचाया, राइट? गलत तो नहीं होगा कहना? बताइए विकास, गलत तो नहीं होगा ये बात कहना? चलिए, वेरी गुड। तो हमने देखा यहाँ पर एक देर इज अ यू नो कॉन्ट्रास्ट, देर इज अ कॉन्ट्रास्ट के माँ बाप ने बच्चे के पैदा होने के बाद उसे जेंडर अनबायस्ड रूम में रखा, लेकिन पैदा होने से पहले जो सामान खरीदा वो जेंडर बायस्ड सामान खरीदा। वाई? माय क्वेश्चन इज दिस। निकिता, आकांक्षा, पल्लवी, बताइए। बेनजीर, I want to listen from you also. There is a contrast. हाँ, और जब पैदा होने के बाद उनको अनबायस्ड रूम में रखा वो वेरी गुड। जेंडर बाइस थे, लेकिन वो लोग जो है चाहते नहीं थे कि वो जेंडर बाइस हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अनकॉन्शियस जेंडर बाइसनेस एंड द कॉन्शियस अटेम्प्ट टू बी टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ जेंडर बाइस। समझ में आ रहा है? अनकॉन्शियसली हम खड़े हो जाते हैं और हमें कोई सिखाता नहीं कि आप कैसे खड़े होइए, एक बार सीख गए तो सीख गए, ठीक है? लेकिन वही अगर हम कार को लेके बाइक को लेके खड़े होंगे तो हम नहीं खड़े हो पाएंगे अगर हमने सीखा नहीं है तो अनकॉन्शियसली बिकॉज ऑफ द कल्चर, क्लास और कन्वेंशंस, दे आर जेंडर बाइस्ड, बट their attempt to show or their attempt to portray themselves or distance themselves from being a gender biased parent is also evident in this particular story. So will you want to appreciate, क्या आप उसके इस particular कहानी में माँ बाप को appreciate करोगे या सिर्फ criticize करोगे? और अगर appreciate करोगे तो क्यों, और criticize करोगे तो क्यों? फाइका, फरा, मैरोश, हाँ, बोलो नाकामयाब है। ये उनके ओन था। तो विल यू अप्रिशिएट और नॉट और क्रिटिसाइज? विल यू अप्रिशिएट दिस डीड और यू विल क्रिटिसाइज? क्या ज्यादा भारी है यहाँ पर, बताइए आपके लिए। पिंकी, बताइए आप, क्या आप उनको अप्रिशिएट करेंगे या क्रिटिसाइज करिएगा? तो वो तो जेंडर, देखो जेंडर जानना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जेंडर पार्शियल या इम्पार्शियल होना वो गलत है।
तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या उनके पार्शियल होने पे आप उनको क्रिटिसाइज कीजिएगा ये स्टोरी सुनने के बाद, या उनके इम्पार्शियल होने के लिए आप उनको अप्रिशिएट कीजिएगा? दूसरी पिंकी, एक और पिंकी जो है वो है प्रेजेंट है? हाँ हाँ बताइए आप, बोलिए। योर आवाज इज ब्रेकिंग। हाँ बोलिए। हाँ आ रही है। Okay, thank you. So finally we conclude is that what I feel मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप पे थोपना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि again I said that कि class is not about myself, it's all about a collaborative cooperation. तो यहाँ पर जो जेंडर, मेरा जो मानना है कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। जो चीज़ इंजेक्ट उनके अंदर हो गई है, जाहिर सी बात है उसका एंटीडोट्स और सॉरी एंटीबॉडीज उनके बॉडी में है ही है, तो कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करेंगे ही वैसा। लेकिन जो उन्होंने कोशिश की कम से कम उस जेंडर बायसनेस से निकल करके अपने बच्चे को एक ऐसा कमरा देना जिसमें कोई जेंडर बायसनेस नहीं हो, और ख़ास करके ऐसा कमरा देना कॉन्शियसली जेंडर न्यूट्रल होना, वो कहीं ना कहीं उनकी एक कोशिश थी जो कि अप्रिशिएबल है। कहानी का जो अगला पार्ट होगा उसमें देखेंगे कि क्या क्रिटिसाइज करना चाहिए या फिर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नाउ लेट्स कम बैक टू द पर्टिकुलर थिंग। क्या चीज के लिए हम वापस आते हैं, हम लोग जानते हैं, वेट, now early age of a child, that is after birth and before the middle childhood, आफ्टर बर्थ एंड बिफोर मिडिल चाइल्डहुड। तो ये जो एज होता है इसको प्याजे ने कहा है, दे आर द लिटिल साइंटिस्ट, दे आर द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आप किसी भी टाइम इतने अच्छे ऑब्जर्वर नहीं होते हैं जितने अच्छे ऑब्जर्वर यू आर एट द टाइम, एक मिनट, यू आर एट द टाइम व्हेन यू आर अ चाइल्ड, जब आप एक बच्चे हैं उस टाइम आप जितने अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं उतने अच्छे ऑब्जर्वर आप कभी भी नहीं होते, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू ऑल्सो कि द चाइल्ड इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर एट दैट टाइम, ठीक है। नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम जनरली इट इज सीन कि बच्चों को पेरेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर ट्रीट डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। गर्ल्स आर बीन ट्रेन्ड और ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे, और बॉयज आर द ट्रीटेड इन डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स हैव मोर कलर वाइब्रेंसीज, आपके कमरे, बच्चे के कमरे में कलर वाइब्रेंसीज बच्चे के कमरे में ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर यू नो कलर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा, कलर मैचिंग ज़्यादा होगा, डिज़ाइंस एंड डेकोरेशंस ज़्यादा होंगे। These are the things which is generally been there. I mean, I'm not talking about the lower middle class or the poor class, है ना, उनके बारे में मैं नहीं बात कर रहा, उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, लड़का हो या लड़की हो सोएगा उसी खटिया पे। Talking about the middle class, you and me, the family belongs to you and me, and the higher class. यहाँ पर there is a conscious as well as the unconscious discrimination between a girl and a boy, ठीक है। For example, कोई भी पेरेंट, मान लो आप में से किसी का बेटी या बेटा होगा, अगर बेटा होता है तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि आप जो है किचन सेट के साथ खेलो, क्या बोलोगे कि बेटा गैस चूल्हा है, कुकर है, तवा है, और ये क्या है, भगोना है, और एक जगह ये बाल्टी है, लेके दिन भर खेलते रहो, बोलोगे? लेट्स टेस्ट। आप
अपने कमेंट में लिख करके बताइए, क्या आप बोलेंगे ऐसा कि बेटा ऐसे खेलो? मैं तो नहीं बोल पाऊंगा. It means कि I am gender biased. Nobody can say that I am completely unbiased in my gender approach towards my children. क्यों भाई? पिंकी आप बताइए, आप क्या अपने बच्चे को बोलिएगा, लड़के को बोलिएगा कि बेटा ये लो, ये भगोना है, ये बर्तन है, कढ़ाई है, खेलो इससे? नहीं बोलिएगा. क्यों नहीं बोलिएगा भाई? क्या लड़के शेफ नहीं बन सकते हैं? गन्स के साथ खेलते हैं. ये कुरान में है, बाइबल में है, कुरान में कहाँ पर है ये? वेयर इट इज रिटन? दैट्स द थिंग. हमको तो यही जानना है कि वेयर इज द ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. झूलन देवी का नाम सुना है? झूलन कहीं नहीं लिखा है. दीज आर द अनस्पोकन अनरिटन रूल्स ऑफ आवर सोसाइटी. हम सब इसी रूल से जुड़े हुए हैं. देखो पिंकी जुड़ी हुई है, हम भी जुड़े हुए हैं, आप सब जुड़े हुए हैं. ये तो चलो लड़का नहीं, छोड़ो लड़की है. लड़की को आप एक टाइम बॉयज की चीजें दे दोगे कि बेटा कार से खेलो या गन से खेलो, उड़ा दो, बाप को मार दो, हैं अपने वाले बैटरी वाली गन है उड़ा दो. लेकिन लड़के को लड़की वाली चीजें नहीं दिया जाता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये सही है गलत है? मेरा ऑब्जर्वेशन है ये, आप बताएं. कम ऑन, बी कम्युनिकेटिव. ऐसा होता है. चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं. अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछूं कि आप किसको ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी को या पापा को? मैक्सिमम लड़कियां बोलेंगी पापा को और मैक्सिमम लड़के बोलेंगे मम्मी को. गलत तो नहीं बोल रहा हूं? टोकना. लेट मी टेल यू रीजन बिहाइंड इट. There is a strong psychological reason which is called Oedipus complex and Electra complex. And because of Oedipus complex, अब ये मत बोलिए क्या होता है, ये सारे टाइम नहीं है अभी बताने का. Oedipus complex की वजह से लड़का माँ से ज्यादा प्यार करता है, Electra complex की वजह से लड़की जो है बाप से ज्यादा प्यार करती है. ठीक है. और जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करती है वही बाप, द सेम फादर, वो अपनी बेटी को बोलता है मैंने तो अपनी बेटी को बेटा की तरह पाला है. मैंने जो है पल्लवी को लड़के की तरह पाला है, लड़की की तरह नहीं. मैंने फायका को, मैंने फराह को लड़की की तरह नहीं पाला है. ये तो मेरा बेटा है. अब वही चीज अगर विकास के फादर हों या फिर और दूसरे जो बॉयज हैं यहाँ पर उनके फादर हों, पात्रा के फादर हों, मुझे बॉयज का ज्यादा नाम याद नहीं है, तो क्या उसके फादर ये बोल सकते हैं या उसकी मदर ये बोल सकती है, चलो उसको तो उसकी माँ ज्यादा प्यार करती है, हम ये इस अजम्पशन के साथ चल रहे हैं, क्या वो ये बोल सकती है कि मैंने विकास को तो एक लड़की की तरह पाला है? बताइए गर्ल्स. तुम्हारा अगर बेटा होगा, ठीक है, अभी जितने लोग नो बोले, आपका अगर बेटा होगा तो आप अपने बेटे को लड़की की तरह पालेंगे या लड़के की तरह पालेंगे? लड़के की तरह पालेंगे. अब बोलेंगे भी यही ना कि लड़के की तरह पाला, ये तो नहीं बोलेंगे कि लड़की की तरह पाला है. देखिए ये चीज हमारे रूट में है, आप समझ रहे ना कैसे. अब आप कहेंगे हम जेंडर बाइस नहीं, मैंने साबित कर दिया. हाँ, आप क्या, मैं भी जेंडर बाइस हूं. सोसाइटी से कोई अलग होकर नहीं जी सकता है, टू बी वेरी प्रिसाइज. हाँ भाई विकास. तुम्हारे पापा ने कभी कहा तुमसे कि मैंने तुमको बेटी की तरह पाला है? बताओ. या मम्मी ने? ऐसा कभी नहीं. अगर कोई अगर बोल देंगे तो तुमको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा?
थोड़ा तुम्हारा टाइमिंग बहुत जबरदस्त है, ये बात तो है। हाँ, अब यही बात अगर हम शीतल से पूछें, शीतल तुमको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा तुम्हारे पापा ये कहें कि मैंने तुमको तो एक बेटा की तरह पाला है? बहुत अच्छा लगेगा, हैं? देख लो। तो ये एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपके साथ अभी किया। So I hope you must have understood what I have said just now, and yeah, and I hope you will like and comment on the video. Thank you for watching this video. Video record.